Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid and you are on the channel of Medicare. So as you know that we have started the practicals of Form D, and in which we have discussed every subject practicals, and today we are going to revise the practical number 6 of pharmaceutics and dosage form. So as you know that in these practical we are going to prepare a lot of things. We have seen how to prepare a syrup, how to prepare a elixir, how to prepare compound syrup, simple syrup, and the different other things we have prepared it. But now in today's lecture we are going to prepare a elixir. But as you know that in my videos there is a rule that first we will revise the previous all the experiment. So this is experiment number 6. So first of all we revise the previous 5 practicals, then we will move on to the forward. So due to this practice you will revise a lot, and I request to you to please revise with me, okay, so that you will clearly see and clearly learn the concept which are memorizing, and which you have to make sure that they are saved into the memory of your brain. So let's revise the first practical that we have discussed. I will also share the screen of the previous experiment so that you can easily understand that. So as you know, this is our experiment number 2. The experiment number 1 was about the lab safety rules. So I don't think so that we have to revise the lab safety rules, and they are not important for the paper point of view. So move on to the important practicals. So the first practical that we have discussed, you know that we have seen that how to make a simple syrup by 2 methods. Actually we have discussed the other 4 methods if you see my video. So we have discussed 4 and 5, 6 methods to prepare a simple syrup. So in the practical they have asked you to prepare a simple syrup by 2 methods, British pharmacopoeia and United States pharmacopoeia. So what is a simple syrup? Explain that simple syrup is an aqueous solution that is nearly saturated, and it acts as a sweetening agent and a flavoring agent. So it is an aqueous solution having water, and in which water the saturated sugar is dissolved and the syrup is made. It has 2 types, okay. So its example is that we have dissolved the sucrose into the water, okay, that's simple. 2 types, dilute syrup and concentrated. You can see as its name indicate that the syrup which contain less amount of solute, it means it is dilute, and which contain more amount, it is concentrated. You can see here in the diagram we have weighed the sucrose, add into the beaker, add water, stir, simple syrup बन गया और उसका final volume makeup किया. Now there are some other types of syrup are also given here, like non-medicated syrup, medicated, and simple syrup. Non-medicated having no medicated compound, or you can say any medicinal substance is present in it, so it is just consist of excipients, while medicated syrup contain the medicinal substance and it is used to treat a particular disease that is related to you. Simple syrup you have discussed that it is a syrup, simple syrup, it is non-medicated syrup, okay. Here the calculation is given according to BP method. आपने किस तरह से सिरप बनाना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला, अमाउंट ऑफ सुक्रोज, कितना आपको अमाउंट सुक्रोज की रिक्वायर्ड है, तो वो 666 ग्राम रिक्वायर्ड है. वाटर कितना रिक्वायर्ड है, 100 ग्राम. 100 ग्राम वाटर में 600 ग्राम जो है वो आपने सुक्रोज डालना है. बट लैब में इतना ज़्यादा सुक्रोज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाटर में डालना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसको रिड्यूस अमाउंट करते हैं. सो रिड्यूस फार्मूला क्या होगा कि आपने सुक्रोज के लिए 6.66 ग्राम, मीन सिंपली मैं इसे कहूँ तो अब आपने 6 ग्राम लिए हैं, ठीक है. 666 ग्राम की बजाय अब आपने 6 ग्राम जो है सुक्रोज को डालना है, किसने, 10 ग्राम वाटर के अंदर, तो वो सफिशेंट होता है लैब के अंदर. वे बाय वे की परसेंटेज आप निकालेंगे, वे ऑफ सुक्रोज और वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, ठीक है. ये हमेशा याद रखना है, बीपी मेथड से जो भी सोल्यूशन प्रिपेयर होता है वो प्रिपेयर होता है परसेंटेज वेट बाय वेट. जब हम आते हैं ना यूएसपी मेथड में, तो वहाँ पर जो सोल्यूशन बनता है वो बनता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं.
किस तरह से आप करेंगे, हमेशा बीपी मेथड के अंदर जो परसेंटेज आती है वेट बाय वेट की वो 65% होती है, ये याद रखना है। और जो यूएसपी मेथड है उसकी परसेंटेज आती है 85। तो कोई आपसे पूछ सकता है ना कि बीपी मेथड और यूएसपी मेथड में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो आपने वेट करना है सुक्रोज़ को। अब ये 100 ग्राम वाटर के लिए है, पहले हम 100 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर हम 10 ग्राम पे। अब हम ये देखने जा रहे हैं 10 ग्राम के लिए 6 ग्राम सुक्रोज़ कैसे आई, इसकी कैलकुलेशन करनी है। पहले 100 ग्राम के लिए हमने किया वे ऑफ सुक्रोज़ कितना होना चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन परसेंटेज वेट बाय वेट आपको पता थी, बीपी मेथड के लिए 65 है। वेट ऑफ सुक्रोज़ आपने फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सोल्यूशन भी आपको पता है 100 ग्राम। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वेट ऑफ सुक्रोज आ जाएगा। सो हियर 65% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ठीक है। तो 65 का परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया वेट ऑफ सोल्यूशन से। आंसर आपके पास जो है वो आ गया 65 ग्राम। यानी अगर 100 ग्राम सोल्यूशन बनाना है तो उसमें 65 ग्राम आप सुक्रोज डालोगे। अगर 10 ग्राम बनाना है ना तो इसकी जगह 10 लिख दोगे, तो वो आ जाएगा आपके पास 6.5 ग्राम। सो वाटर का कितना वेट होगा, टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सुक्रोज। वेट ऑफ सुक्रोज कितना है 65 ग्राम और 100 ग्राम टोटल वेट था, तो इसको मतलब 35 ग्राम आपने इसके अंदर वाटर डालना है। 10 ग्राम के लिए भी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द सिरप, सिरप को प्रिपेयर करने की ये इन्होंने एक्स्ट्रा मेथड्स जो हैं वो भी बयान किए गए हैं। आपके प्रैक्टिकल में तो सिर्फ 2 मेथड उन्होंने पूछे हैं, बीपी और यूएसपी मेथड। इनको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपने जो फोकस करना है वो बीपी मेथड पे और यूएसपी मेथड पे करना है। तो यहाँ पर यूएसपी मेथड की कैलकुलेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुक्रोज कितनी रिक्वायर्ड है, वही 6600 ग्राम 100 ml के लिए। अब यहाँ पर 100 ग्राम नहीं लिखना है, ml लिखना है, क्योंकि ये है परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। वेरी गुड। अब हमने रिड्यूस फार्मूला करना है, क्योंकि हमने लैब स्केल पे परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए सुक्रोज 6.6 ग्राम 10 ml के लिए होगी। कैसे ये कैलकुलेशंस आई अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी वेट ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml। सो यूएसपी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया 85% होगी, बीपी के लिए 65, यूएसपी के लिए 85, ये याद रखें। तो सोल्यूशन का टोटल वेट कितना 100 ml, तो आप उसको वही करेंगे, 85 का परसेंटेज हटाया 100, नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये आपके पास 85 ग्राम आंसर आ गया। इसी तरह 10 ml के लिए सोल्यूशन करेंगे आप। वेट बाय वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम किस तरह से निकालना है, इफ़ यू डू 100 माइनस 85, अगर जैसे हमने पीछे किया था वाटर का वेट निकाला था 35 ग्राम, यहाँ पर हम ना वो कर नहीं सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, मैंने ये रीज़न लिखी हुई है। इफ़ यू डू 100 माइनस 85 तो वो 15 ग्राम वाटर आएगा। अब आप देखें कि 85 ग्राम सुक्रोज के अंदर 15 ग्राम हम वाटर डालें। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब आपके बीकर के अंदर सारी सुक्रोज होगी और उसमें आप आधा कप पानी डाल रहे हैं, तो मिक्सचर ही नहीं होगा, सिरप बनेगा ही नहीं, सारी शुगर ही रह जाएगी उसके अंदर। तो जो 15 ग्राम वाटर है वो वेरी लो है एज़ कम्पेयर टू द 85 ग्राम ऑफ शुगर। सो इस वजह से हम वाटर का पूरा 100 ml यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसकी रीज़न आपको बता दी है। प्रिपेयर, अच्छा हीटिंग मेथड से किस तरह से प्रिपेयर होता है अपरेटस आपको देख लेंगे। ये 2 चीज़ें ही आपको रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले आपने बेक कर लेना है अपनी शुगर को, उसके बाद क्या करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड करने के बाद हीट करना है उस सोल्यूशन को, ताकि सारी सुक्रोज डिज़ोल्व हो जाए, और एंड में प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल देने हैं। प्रिकॉशंस आप खुद पढ़ लेंगे कि एक्स्ट्रा आपने हीट नहीं करना है, जिससे क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स के लॉस होने के चांसेस होते हैं। यूजेस भी इसके देख सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे और मेडिकेटेड सिरप बनाने के लिए भी यूज़ होता है। लेवल आप इसका इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे 8.5 ग्राम 1.5 ग्राम, ये यूएसपी मेथड का लेबल लगा हुआ है। नेक्स्ट मेथड है सिंपल सिरप को प्रिपेयर करना बाय एजिटेशन मेथड। एजिटेट करना कहते हैं मिक्स करना या स्टिर करना किसी चीज़ को।
सो ये एजिटेशन मेथड का है। ऑपरेटर्स और केमिकल्स आप देख रहे हैं। प्रोसीजर्स में वही वे करना है, सुक्रोज को बोतल में डालें और बोतल का जो कैप है वो आपने बंद कर देनी है और फिर उसके बाद उसे एजिटेट करना है। मीन उस बोतल को आप अपने हाथ में यूँ लेंगे और इस तरह से जल्दी जल्दी शेक करेंगे, ठीक है। सो वही प्रोसेस आ जाएगा और वाटर वगैरह डाल के वो करना है। ये बीपी मेथड का जो है लेबल आप देख सकते हैं लगा हुआ है। नेक्स्ट सिंपल सिरप को बनाना है बाय पर्कुलेशन मेथड। अब पर्कुलेशन से किस तरह से आप बनाएंगे? अच्छा, पर्कुलेशन मेथड्स का ऑपरेटर्स आप खुद देख लेंगे। इंग्रेडिएंट सुक्रोज और वाटर है। प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं ना तो इसको मैंने पेंसिल से ऊपर लिखा हुआ है, वी कैन टेक अ कंटेनर विच परफोरेटेड एट द बॉटम। ऐसा कंटेनर लें जो नीचे से बॉटम से परफोरेटेड हो। उसके पोर्स के ऊपर आपने शुगर डाल देनी है और अब ऊपर से पानी गुजारना है। जब पानी उन पोर्स से गुजरेगा ना तो वो शुगर के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा और एक सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी सिरप बनाते हैं। हम एक स्पेसिफिक सिलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सिरप की, तो उसके बाद हम उसके अंदर मैयर करते हैं, वाटर और शुगर ऐड करते हैं और देखते हैं वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मैयर करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो उस तरफ है वो मैंने रिज़ल्ट लिखा है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं क्या है, प्रिपेयर अ सिंपल सिरप बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया मेथड। देन मैंने डिफरेंस लिखा है बीपी मेथड में और यूएसपी मेथड में। तो बीपी मेथड में आप देख रहे हैं कि 65% वेट बाय वेट है और यूएसपी मेथड में 85% वेट बाय वॉल्यूम है। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ वाटर की बात करते हैं तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड नॉट ग्रेटर देन इट। तो बीपी में 80 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना और बीपी में आप मैक्सिमम 60 रख सकते हैं, 60 से ऊपर नहीं जाना होता। तो ये टेम्परेचर का भी डिफरेंस है। और अगर हम बात करते हैं कि पर्पस की, तो ये जो बीपी मेथड है ये यूज़ हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है ये वहाँ ब्रिटिश में, बरतानिया, अमेरिका वगैरह में, ये वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इस मेथड के ज़रिए से अपने सिरप बनाती है। जब हम बात करते हैं ना यूएसपी मेथड की, तो यूनाइटेड स्टेट इस तरह के मेथड को यूज़ करती है अपने सिरप बनाने के लिए। तो हर ने अपना एक डेफिनेट मेथड बना लिया सिरप बनाने का और थोड़ा सा डिफरेंस है, परसेंटेज का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम का डिफरेंस है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल था वो था कंपाउंड सिरप बनाना है फिरस फॉस्फेट का। फिरस फॉस्फेट नाम से ही बता रहा है, फिरस और हमने फॉस्फेट इसके अंदर डालना है। ये है उन लोगों के लिए जिनके अंदर कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। इसको हम कहते हैं हीमेटिन। वो मेडिसिन जो अनीमिया के पेशेंट्स को दी जाती हैं और एज अ सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट जो ये ड्रग है। कंपोजिशन क्या होगी इस सिरप की, तो हम उसका निमोनिक रिवाइज करते हैं। इसका फुल लेक्चर में मैंने इसका निमोनिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि 4 रोड्स हैं। इसका मतलब आयरन टर्निंग्स इतनी है 0.4, 4 रोड्स हैं और वो कितनी पुप्पोज ने उठाया हुआ है, 4.8 पुप्पो ने उनको कैरी किया हुआ है और वो आपको लड़ने के लिए आ रही हैं, बट रास्ते में वो खुद से लड़ने लग जाती है और उनके बोन्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 1.36 ग्राम रह जाता है। जाहिर बात है वो एक दूसरे को जब आयरन की रोड्स मारेंगी तो उनका कैल्शियम सारा बोन्स के अंदर से निकल जाएगा, सिर्फ 1.36 ग्राम कैल्शियम बचेगा। और कीप से पोटाशियम और सेव से सोडियम। पोटाशियम बाइकार्बोनेट सिर्फ 0.1 ग्राम रहा और सोडियम फॉस्फेट 0.1 ग्राम रहा। फिर हमने उनको शुगर दी, सुक्रोज 70 ग्राम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ पेंक्रियाज। जारी बात है उन्होंने एक दूसरे को इतना मारा कि अब उनका हुआ ऑपरेशन से है ऑरेंज वाटर जो कि हमने फ्लेवर्ड के लिए डाला है 5 ml और पेंक्रियाज के पी से बनता है प्योरीफाई वाटर जो कि आपने 100 ml डालना है। तो सिरप की ये बेस हमने बनाई है सुक्रोज और वाटर के ज़रिए से। इन सब को आप प्रिपेयर करेंगे और आप इनको यूज़ करेंगे। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आयरन इसमें क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन से आपका ब्लड सेल बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर कैल्शियम का सोर्स है। फॉस्फेरिक एसिड डिज़ोल्व करने में मदद देता है। इसके अलावा सुक्रोज वगैरह बेस उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए होते हैं। प्रोसीजर क्या है, आपने एक स्मॉल फ्लास्क के अंदर पहले वाटर
और इसके साथ फॉस्फेरिक एसिड और आयरन टर्निंग, ठीक है। फॉस्फेरिक एसिड उसको डिज़ोल्व करने में मदद देता है और आयरन को डालना है। जाहिर बात है आयरन वाटर में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, इस वजह से हम फॉस्फेरिक एसिड बीच में डाल रहे हैं और उसको हीट करना है। हीट के बगैर वो डिज़ोल्व नहीं होगा। फिर उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट और जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको टाइट्रेट करके वेस्टर्न में उसका मिक्सचर बना देंगे। इस तरफ जो है वो मैंने कुछ कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि 100 ml के लिए थी, 10 ml के लिए मैंने ये सारी कैलकुलेशंस आपको करवाई हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम बात करते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हमने पिपरीजीन सिट्रेट एलिक्सर बनाया था। ये एक एलिक्सर है। एलिक्सर्स क्या होते हैं? फेवरेट हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें वाटर भी होता है, अल्कोहल भी होता है। और इसके अंदर क्लोरोफॉर्म स्पिरिट हम लोग डालते हैं, जो अनकॉन्शियस नहीं करता है। क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, क्लोरोफॉर्म और किसका मिक्सचर था? अल्कोहल का। वेरी गुड, यू नो। सो ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। पिपरीजीन सिट्रेट का टेस्ट बहुत गंदा है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर सिरप ऐड करते हैं ताकि टेस्ट जो है वो गंदा जो टेस्ट है वो ना आए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एंटी हेलेमेंथिक है, यानी ये इन्फेक्शन जो पैरासाइट वॉर्म्स वगैरह जो होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसके लिए ये है। इसको याद कैसे रखना है? प्लीज़ कैरी वाटर, सिरप एंड ग्लिसरीन स्वीटली। बहुत ही आसान सा निमोनिक है। प्लीज़ से पिपरीजीन सिट्रेट, कैरी से क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, वाटर से वाटर, सिरप से सिरप और ग्लिसरीन से ग्लिसरीन। ये इसकी कंपोजिशन है। पिपरीजीन सिट्रेट के 18 ग्राम आपने लेने हैं। क्लोरोफॉर्म स्पिरिट बहुत थोड़ा सा डालेंगे हम, 0.5 ml। ग्लिसरीन ठीक होता है तो हम 10 ml डाल सकते हैं। सिरप 50 ml और वाटर तो हमेशा 100 ml ही रहेगा, ठीक है। सो 18 ग्राम पिपरीजीन सिट्रेट, क्लोरोफॉर्म 0.5, ग्लिसरीन 10 और सिरप 50 ml हम लोगों ने डाला है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपने जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है पिपरीजीन सिट्रेट, उसको डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर। फिर बाद में ग्लिसरीन, सिरप और बाकी ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो आपने ऐड करके फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों एक्सपेरिमेंट है पैरासीटामोल पीरियडिक एलिक्सर, ठीक है। याद रखिएगा कि हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप इन सब लेक्चर्स के अलग-अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो पैरासीटामोल पीरियडिक एलिक्सर, ये भी एक एलिक्सर है और पैरासीटामोल का है, ये बच्चों के लिए होता है, इसलिए इसको पीरियडिक कहा है। तो ये कैटेगरी क्या है? ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक यानी फीवर को कम करने के लिए, एनाल्जेसिक यानी ये पेन किलर है। सो एलिक्सर्स क्या होते हैं? ये अगेन उन्होंने वही पैराग्राफ जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ये वही का वही है। कंपोजिशन इसके अंदर पिपरीजीन सिट्रेट की बजाय बस पैरासीटामोल आ गया, बाकी सब कुछ वही है। पैरासीटामोल के 2.4 ग्राम, एथेनॉल अल्कोहल और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म वाटर को अलग अलग कर दिया है। आप इकट्ठा क्लोरोफॉर्म स्पिरिट भी लिख सकते हैं 12 ml। बाकी इसके अंदर सिरप और वाटर वगैरह जो है वो ऐड किया गया है। प्रोसीजर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने वॉश करना है सोल्यूशन को बनाने के लिए पैरासीटामोल और वाटर को डिज़ोल्व करना है। फिर क्लोरोफॉर्म स्पिरिट और बाकी सारी चीज़ें मिला के शेक करें और फाइनली वॉल्यूम मेकअप कर लें। सो बच्चों, हम लोग रिवाइज कर सकते हैं अपने सारे पिछले एक्सपेरिमेंट्स। अब हम चलने वाले हैं अपने आज के एक्सपेरिमेंट पे। वीडियो तो लंबी थोड़ी सी हो गई है, बट आई होप कि आप लोगों ने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो प्रिपेयर क्या करना है? 10 ml टर्पीन हाइड्रेट लिंक्स्टर। अब ये लिंक्स्टर क्या होता है? क्योंकि पिछले में हमने एलिक्सर बनाना सीखा, हमने सिरप बनाना सीखा, हमने ये चीज़ें बनाना सीखी। लिंक्स्टर हमने कभी भी नहीं बनाया, तो ये पहला लिंक्स्टर है जो आप बनाने वाले हैं। बहुत ही ईजी है। ये एज अ एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? ये कफ को कम करने के लिए या कफ एज प्रोडक्टिव कफ को स्टिमुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये विस्कस होते हैं लिक्सचर और ओरल लिक्विड, ओरली आप इनको लेते हैं और लिक्विड ही होती है, लेकिन ज़रा विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है। और ये रिलीव करता है कफ को। तो इसको जब आप स्वेलो करते हैं ना, स्लोली स्वेल करते हैं ताकि थ्रोट पे उसका मतलब इफ़ेक्ट रहे और विदाउट द वाटर, यानी आप इसके ऊपर पानी नहीं पिएंगे। ये इतना मीठा होता है, इतना मीठा बनाया गया होता है कि आप इसके ऊपर पानी ना पिएँ। तो ये जो टर्पीन हाइड्रेट इसके अंदर जो कंपाउंड है वो एज एक्सपेक्टोरेंट एक्ट करता है, वो कफ को ख़त्म करता है। इट यूज़ टू लूजन द म्यूकस। यहाँ पर जितना भी म्यूकस अटैच हुआ होता है पेशेंट के अंदर, चाहे उसे क्रोनिक कफ हो या एक्यूट कफ हो या ब्रोंकाइटिस हो, तो वो उसको सूथिंग इफेक्ट देता है। ग्लाइसरोल इसके अंदर हम ऐड करते हैं जो यहाँ की जगह को स्मूथ करता है ताकि पेशेंट को कफ ना हो।
बनाना इसे कैसे है, बहुत आसान है। टर्पीन हाइड्रेट हम डालेंगे, साथ ग्लाइसरोल और साथ सिरप, बस यही चीज़ ऐड करनी है, साथ वाटर में वॉल्यूम मेकअप कर लेना है। टर्पीन हाइड्रेट के 1.5 ग्राम, ग्लाइसरोल के 12 ग्राम और सिरप के 30 ml। सिरप ज़्यादा डाला है 30 ml, ग्लाइसरोल 12, और वो टर्पीन हाइड्रेट की कम अमाउंट हमने डाली है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हमने सिरप इसके अंदर इसलिए डाला है ताकि जो टर्पीन हाइड्रेट की जो बिटरनेस है, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, तो वो बांस करने के लिए हमने उन्हें डाला है। प्रोसीजर क्या है, आपने टर्पीन हाइड्रेट को सबसे पहले ग्लाइसरोल के अंदर डिज़ोल्व करना है। यहाँ पर वाटर नहीं है तो हम ग्लाइसरोल के अंदर ग्लाइसरोल के आई थिंक हमारे पास 12 ml थे, तो हमने उसके अंदर डिज़ोल्व करना है। फिर हमने उसके अंदर 30 ml सिरप डालना है और कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है ताकि वॉल्यूम बन जाए। फिर आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है अम्बर कलर नैरो माउथेड ग्लास बोतल। जितने भी लिक्विड प्रिपरेशंस हैं उन्हें आपने नैरो माउथेड ग्लास बोतल में डालना है, क्लोज कर देना है उसे एक मेटालिक कैप से और पॉलिश और लेबल लगा दें। इसके ऊपर स्टोरेज की कंडीशन लिखनी है कि ज़ाहिर बात है आपने इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं लिखना, कूल प्लेस पे स्टोर करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। डायरेक्शंस क्या होंगी, 5 से 10 ml डेली इन डिवाइडेड डोज, ठीक है, 5 से 10 ml डेली आप पी सकते हैं। सो उन्होंने लिखा हुआ है टेकन इन द मॉर्निंग और इन द नाइट। और नोट की बात करते हैं तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ड्रग that loosen or clear the mucus from your respiratory tract. So this was all about our today's experiment. I hope that you like this video. If you like it, then please subscribe to my channel, like my videos, and also press the bell icon to get all the notifications of my video which I will upload it in the future. So take care of yourself and not forget to subscribe this. Take care. Allah Hafiz.